Hello students, welcome to online study program of Carmel School. Today we are going to study chapter number 4, Understanding Laws from Social and Political Life. Listen carefully. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We know now that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? तो इस चैप्टर में हम कानून यानी लॉज को समझेंगे। तो कुछ कानून जो है वो आप जानते होंगे, जैसे शादी की उम्र या फिर वोट देने का जो अधिकार हम लोगों को मिलता है उसकी उम्र क्या होती है। फिर हो सकता है आपको जो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के जो कानून होते हैं वो भी आप जानते हो। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, और ये जो कानून है क्या वो सभी पे लागू होते हैं, और नए कानून किस तरह बनते हैं। क्या कोई कानून ऐसा है जो किसी को पसंद ना हो। तो अगर हम इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, तो उसके नाते हम लोगों को ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government official's actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? तो क्या लॉज सब पर लागू होते हैं? तो नीचे एक कंडीशन दी हुई है वो हम पढ़ेंगे। तो एक सरकारी अधिकारी है जिसके बेटे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, और इस वजह से कि वो सरकारी अधिकारी है तो वो अपने बेटे को भागने में मदद करता है। तो क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को इसलिए कानून से माफ़ी मिलनी चाहिए कि उसके जो पिताजी है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ताकतवर है? The above is a clear case of the violation of law. As you read in Unit 1, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा तो ये सीधे सीधे कानून तोड़ने की बात हुई। तो जैसा हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो एग्री थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया यानी जो स्वतंत्र भारत है उसके बाद जो कानून बनेंगे वो इस तरह के होने चाहिए, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जो भी कानून होंगे उसका जो महत्वपूर्ण ये पार्ट है कि जो भी कानून होंगे वो सबकी नज़र में बराबर होंगे। The law cannot discriminate between persons on the basis of the religion, caste or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established. But was it always like this? तो हमारा जो कानून है धर्म या जाति लिंग के आधार पर कोई भी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। तो कानून के शासन का मतलब यह है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता, और चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक ही निश्चित सज़ा होती है, और सज़ा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था?
In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons receive for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. तो प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया में ऐसे बहुत सारे कानून थे और अक्सर एक जैसे मामले के कई तरह के कानून होते थे। अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके कानूनों को अपने अधिकार में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ादी थी और कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली माने जाने वाली मतलब जो लोअर कास्ट है उसके अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी और उसके अलावा जो कॉलोनाइजेशन जो रूल था उसके दौरान कानून पर आधारित जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने का काम यानी जाति के आधार पर सजा देने में जो भेदभाव था वो खत्म हुआ कब? जब ब्रिटिश रूल था, जब कॉलोनियल रूल था। ओके, इट इज ऑफन बिलीव दैट it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include: first, that colonial law was arbitrary, and second, that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of the arbitrariness that continued to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870. The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटिशर्स ने की थी। तो हिस्टोरियंस में इस बात पर काफ़ी चर्चा या विवाद भी रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि वो अपनी मनमानी पर आधारित था और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में जो भी कानूनी मामले होते थे वो डेवलपमेंट के लिए बताते थे और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब 1870 में जो एक्ट बना था जिसको सेडिशन एक्ट कहते हैं वो जो ब्रिटिश रूल के मनमाने पर एक मिसाल थी, मतलब वो जो भी मनमानी करते थे उनके खिलाफ ये कानून बनाया गया था। इस कानून में सेडिशन की परिभाषा, सेडिशन यानी राजद्रोह हम कह सकते हैं, और इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है तो उसको बिना मुकदमा चलाए किसी भी बिना रीजन के गिरफ्तार कर दिया जाता था। Indian nationalists began protesting and criticizing the arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने जब ब्रिटिशर्स का विरोध किया, उनके खिलाफ हुए, तो अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया, तो ये जो संघर्ष था उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था यानी ऐसा सिस्टम वो बनाना चाहते थे जो न्याय के विचार में मतलब जस्टिस हो। और 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी जो पेशा है वो भी ज़्यादा उभरने लगा। तो कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि कॉलोनियल जो अदालतें हैं उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए, यानी जो कॉलोनियल कोर्ट है उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जो इंडियन कोर्ट के जो हमारे जजेस थे वो फैसला लेने में ज़्यादा अपना रोल निभाने लगे और जो कॉलोनियल रूल था उसके दौरान जो शासन था उसमें इवोल्यूशन में
यहाँ के लोग कई तरह से अपना योगदान यानी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे. With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. Every year, our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. In your class 6th book, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, sons, daughters, and their mothers can get an equal share of family property. Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. How do people come to think and purpose that a new law is necessary? You will read more about this in the next section. तो संविधान को जब स्वीकृति यानी उसके एडॉप्शन के बाद वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके आधार पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो देश के लिए कानून बनाने लगे और हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस कानून को नए भी बनाते थे और पुराने कानूनों को अमेंड भी करते, मतलब उसमें सुधार भी लाते थे. तो क्लास 6 की बुक में आप लोगों ने 2005 के जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा. इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी माँ तीनों को परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसमें बराबर हिस्सा मिल सकता है. तो इसी तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर जो रोजगार यानी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नए कानून बनाए गए. और लोग इस सारे डिसीजन पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरी है. तो वे कानून किस तरह से, मतलब उसका जो प्रस्ताव है वो किस तरह से रखा जाता है, कैसे उसको प्रपोज किया जाता है, इसके बारे में आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. Then how do new laws come about? The parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. तो ये नए कानून किस तरह बनते हैं, कानून बनाने में पार्लियामेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ये हम लोगों ने देखा. तो ये जो प्रोसेस है वो कई तरह से आगे बढ़ती है. आमतौर पर सबसे पहले समाज के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये जो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सामने आ रही जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उसके प्रति वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको दिखाए. तो आइए देखें घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस, इसका सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual, and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. तो जब परिवार का कोई भी मेल यानी पुरुष वो अगर घर की किसी भी औरत, आमतौर पर उसकी जो पत्नी होती है, उसके साथ अगर मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या चोट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं. औरत को ये जो नुकसान है वो शारीरिक मारपीट या भावनात्मक उसका जो शोषण एब्यूज़ किया जाता है उसके कारण पहुंच सकता है. ये शोषण वर्बली हो सकता है या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है. घरेलू हिंसा कानून यानी डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बना है 2005 में, उसके मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा की जो परिभाषा है वो डोमेस्टिक यानी घरेलू इस शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है. अब ऐसी महिलाएं भी जो घरेलू दायरे का हिस्सा माना जाएगी, जो हिंसा करने वाले जो पुरुष है उनके साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है. Then let me see a story. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 passed.
in October 2006. Listen, Shazia, did you read today's newspapers? Isn't it a great day for women? तो जब न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना है वो पास हो गया, तो ये कॉन्वर्सेशन है दो लेडीज़ के बीच में। तो वो शाजिया से कहती है, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर्स? तो कहती है कि शाजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। तो शाजिया कहती है, नॉट जस्ट वुमन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. कुसुम, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. तो शाजिया कहती है कुसुम को कि महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना टाइम लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। Kusum and Shazia work for a women organization. They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. तो कुसुम और शाजिया ये एक महिला संगठन की सदस्य है और उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है कि उन्होंने कितना उसके पीछे स्ट्रगल किया, कैसे वो जर्नी उन्होंने पास की है। In April 1991, a typical day at their office. तो अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन था। I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have now where to go. तो उनके ऑफिस का ही एक इंसिडेंट है। तो एक लेडी आके कहती है, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है और मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? Then I am being ill-treated by my son and daughter-in-law. They verbally abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. तो दूसरी एक महिला कहती है, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं और मैं अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। तो वो पहले वाली लेडी कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। और वो बूढ़ी महिला कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड इट डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। तो बदकिस्मती से मौजूदा कानून जो है उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं थे, क्योंकि ये लॉ तब बना नहीं था। ये कब की घटना है? अप्रैल 1991 की, और ये जो लॉ पास हुआ वो 2005 में। Then throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums. तो 1990 में अलग अलग मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। We have heard testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household, and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue. तो वो महिला कहती है, हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है और हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है और वे अपने मकान में रहना चाहती है, तो कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया कानून होना चाहिए। In 1999, Lawyers Collective, a group of lawyers, law students and activists, after nationwide consultation, took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. तो 1999 में वकीलों और कानून के विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स थे और समाज के जो साइंटिस्ट थे, उनके संगठन से लॉयर कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा, उसकी रोकथाम और सुरक्षा के लिए एक मसूदा एक ड्राफ्ट बनाया और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। तो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है उसमें शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक और भावनात्मक जो दुर्व्यवहार होता है उसको शामिल किया जाना चाहिए। Then the law should cover
Any woman living within a shared domestic space, they should be protected from being evicted from the shared household. तो घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए. उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए. व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ? और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? तो इस तरह से डिस्कशन होना शुरू हुआ. ओके, नाउ वी विल सी द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन in second part. Okay, thank you.